So namaste bhai or behno. You must have noticed that lot of people have joined the stock market uh, options trading, share market trading bandwagon over the last 5 years. 3.6 crores new people have come on the bandwagon in the last 5 years. 14 years back, when NSE was set up, they had 1 crore investors. They took 7 years to add another 1 crore, then 3.5 years to add yet another 1 crore, and then 1 year to add next 1 crore. But now they are adding this 1 crore every few months. It shows that the fast pace of the middle class and HNIs who are joining the stock market bandwagon. Everybody wants to make quick money and wants to get into it. Also, they want to be a part of the India story. They want to be a part of the booming Indian economy, and which is quite understandable. So it's not just quick money, it's also to be a part. Whenever market capitalization of any country goes between $3 to $5 trillion, the stock market rises the fastest. So there is a lot of scope, and I well understand that there are reasons for all this. However, this whole bull run has started over the COVID, when people were restricted at home, and from there they have been able to invest heavily in the markets. Now, 5 years back, there were 30 million paying taxpayers in India. Today it is also the same, but the number of registrations as far as stock markets have gone up, which means it is more than the taxpayers. There are others also who are not paying tax, but they still join the stock market bandwagon. There were 1.65 crores people investing in the market 14 years back. It is about 11 crores now. The median age of the investors is young. Young population is increasing. The household savings is, however, at a 50-year low, which is something that you should be noting about. There are 100 million Indians who have got steady jobs about, and there are 200 million डीमैट अकाउंट्स. तो 100 मिलियन जो हैं लोगों को अच्छी जॉब्स हैं, स्टेडी जॉब्स हैं, और 200 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं. तो चलो अगर ये भी मान लिया जाए कि लोगों को एक से ज़्यादा है डीमैट अकाउंट, फिर भी आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स ऐसे कम से कम 50 मिलियन भारतीय लगेंगे जिनके पास स्टेडी जॉब्स और स्टेडी इनकम नहीं है, पर वो शेयर मार्केट में बैठ गए हैं. ठीक है, ये बात है, आपको थोड़ा सोचने लायक बात है कि ये 50 मिलियन जो है नौकरियां नहीं है, और पैसा जो बोरो कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़ते जा रहा है इस वक्त. RBI's 2024 Financial Stability Report says that 1 out of 10 houses have got now high debt. ठीक है, इजी लोन, इंस्टा लोन वगैरह ले लेके लोग पैसे अपने घर ही नहीं चला रहे हैं, बल्कि मार्केट में भी डाल रहे हैं, और इसके लिए उनके ऊपर शेयर प्रेशर भी बढ़ रहा है. तो 50% ऑफ द इंडियंस इन दिस एज ग्रुप ऑफ 30 to 45 ईयर्स, जो कि ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास है, जिनकी अर्निंग कैपेसिटी 3 times ऑफ द इंडियन एवरेज है, उनमें से 50 लोग कह रहे हैं कि हमें 20% भी हमारी जो सैलरी बचती है वो सेविंग्स में नहीं जाती, या तो EMI में चले जाती है, घरों के पैसे भरने में, या तो फिर काफ़ी कुछ आपका मंथली ये जो जा रहा है आपका स्टॉक मार्केट में पैसे दबा रहे हैं, वहाँ जा रहा है. और 30% जो है लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम प्रॉपरली पैसे बना नहीं पा रहे हैं. ये RBI की रिपोर्ट है, 2024 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. तो 30% लोग बोल रहे हैं कि हम प्रॉपरली पैसे बना नहीं पा रहे हैं, और लगभग उससे थोड़ा कम 28% बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन वे में हमारी सेविंग्स भी नहीं हो रही है. तो मतलब काफ़ी कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गलत जा रही हैं. क्यों हो रहा है ये सब? शॉर्ट में आपको मैं समझाता हूँ. ये सब हो रहा है क्योंकि सिप वगैरह जो कर रहे हैं, सिप तो है यार, हर महीने डाल रहे हो, लेकिन जिस तरह से मार्केट 5 सालों में तो बढ़ा है, 2000 से लेके 2020 से लेके 2025, लेकिन
उसके बीच में भी स्टैगर्ड रहा है। कई पीरियड्स हैं जहाँ पे मार्केट ऊपर रहता है, कहाँ नीचे आ जाता है। अब ये आप कहेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं। अगर मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स का भी देखूं तो उसमें कुछ पीरियड्स जो हैं वो हाई वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि सडनली जोर से गिरेंगे और कुछ पीरियड्स में जोर से बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे ये तो हमेशा ही होता है मार्केट में। नहीं, अगर आपको वो पीरियड्स में दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिप वगैरह करने से, और इसके लिए म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न भी काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको ये पीरियड्स दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पीरियड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब गिरावट आ रही लगाएं और कहाँ तक ऊपर जाएगा वहाँ पे आप थोड़े से लिक्विडेट करें, कम रखें। आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को जब तक आप समझेंगे नहीं। अब बहुत सारे विशेषज्ञ आ गए हैं, यूट्यूब वाले, इवन ज्योतिषी लोग टीवी पे। एक तो ज्योतिषी ने पूरा एक वेबसाइट बना दिया है जहाँ 100 ज्योतिषियों को बिठा दी कि सब अपने प्रेडिक्शन देंगे। अब इसमें जाके लोगों को समझेगा कि एक कुछ एक बोलेगा, एक दूसरा बोलेगा, क्या समझेंगे। और अजीब और गरीब बात यह कि अभी उसको वेंचर कैपिटल की भी फंडिंग मिल रही है क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी है। आज ज्योतिषियों के जो आप व्यूज़ देखेंगे ज़बरदस्त है। भाई और बहनों, तात्पर्य ये है, आप किसी भी सोर्स से लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सही हो। हमने भी इतने सालों की मेहनत लगा दी है पूरी, इसके ऊपर 30 साल से ज़्यादा बिठा दिए रिसर्च पे, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि कौन से पीरियड्स में सबसे ज़्यादा। अभी एक पीरियड, एक महीना आ रहा है, मुझे दिख रहा है नेक्स्ट सेवरल मंथ्स के अंदर, जहाँ 10-15 दिन देखेंगे तो ज़ोर से गिरेगा और 10-15 दिन ज़ोर से बढ़ेगा एक महीने के अंदर। बताइए, तो ये सब जो है स्किल है। और ये मैं दूर भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत साइंटिफिक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये मैं सब पहले बता दूँ तो आपके लिए कुछ अलग ही माहौल बन जाए ट्रेडिंग का। इसके लिए मैं लोगों को, और जहाँ पे वॉलेटिलिटी, फिर कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं जैसे अभी ये हफ्ता रहा, मिक्स्ड रहा, लोग समझ नहीं पाते, उनको लग रहा है एक ही डायरेक्शन होगा। नहीं, एक डायरेक्शन वाला आ रहा है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, आपको वेट करना है, इंतजार करना है। पीरियड आ रहा है, जितना जल्दी आप घाय में करेंगे, जितना जल्दी आप अपना इम्पेशेंस रखेंगे, पेशेंस को लूज कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। जो पेशेंट इन्वेस्टर है वो ही पैसा बनाएगा। जो ज़्यादा इधर से उधर से इधर घूमेगा फिरेगा तो उसको कोई पैसे बरोबर बनने वाले नहीं हैं इस मार्केट में। इनफैक्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो मेरे पेड ग्रुप्स में भी, उनको भी मैं कहता हूं कि आप पूरा दिन ट्रेडिंग मत करिए। हम आपको पीरियड्स बता रहे हैं, आवर्स बता रहे हैं, इस पे करिए। बाकी टाइम आप सारा दिन नहीं करिए। आप खुद जाके जबरदस्ती कोई करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये इन जनरल है। मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों मार्केट में लोग फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुख्य रीज़न है कि उनको पीरियड साइंटिफिकली मिल नहीं रहे हैं। दुक्केबाजी से लोग मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं और बता कम रहे हैं। हमारा जो है, मैं आपको प्रिसाइज, अपने ग्रुप में भी आप देखेंगे तो मैं प्रिसाइज दिन और आवर्स बताता हूं जहां बढ़ने और नीचे आने के चांस ज़्यादा है, या जो भी है जहां मिक्स्ड होगा तो वो भी बताता हूं, और किस दिन में कुछ नहीं खास मूवमेंट वो भी बताता हूं। तो ये सब आपको साइंटिफिक एनालिसिस है नहीं, और आप उतर आए हैं और आप देख रहे हैं 150 मिलियन को प्रॉपर, 100 मिलियन को प्रॉपर जॉब से 200 मिलियन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स पेयर्स कम हैं और इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। मतलब कई लोग हैं जो टैक्स भी नहीं भर रहे हैं, मतलब वो कहाँ से लोन वगैरह लेके और चला रहे हैं कि भाई देखो कहीं से पैसे बन जाए, यहीं से ही। मैं समझता हूँ कि जॉब्स क्रिएशन थोड़ा कम रहा है भारत में कुछ सालों से, इसलिए लोगों के ऊपर भी खर्चे बहुत बड़े हैं और उनके ऊपर भी प्रेशर है। और शायद ये भी एक रीज़न है जो लोग, इतने सारे लोग घुस गए हैं मार्केट में, और इतने सारे लोगों ने फिर यूट्यूब वगैरह भी बना दिए हैं। हम तो बहुत सालों से हैं, लेकिन कई लोग अभी न्यू भी आ गए हैं और उन्होंने, और बहुत चमकीले बनाते हैं कि आप ये AI की ऐप को डाउनलोड कर दो, आपको तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई और बहनों, इतना आसान ये सब नहीं है। ऐसे कोई चमत्कारी जादू की कोई छड़ी नहीं है कि बस आपने डाउनलोड कर दिया। नहीं, मेहनत, परिश्रम चाहिए। और हर जो महीना है, हर दिन है, मार्केट में एक नया रूप लेके आता है। ये मत सोचिए कि जो पास्ट का जो बस ऐसे ही हमने कोई ऐसे जादू की बना दी, हमने ऐप बना दिया। वो कोविड एरा, ये जो .com एरा में भी ऐसे ही था ना, कि किसके भी आप पूछेंगे आप क्या काम कर रहे हैं तो बोलेंगे हमने एक ऐप बनाया है, हम ये कर देंगे और .com में ये लगा देंगे और उससे पैसे। और फिर आपने देखा जब बस्ट हुआ तो क्या हुआ। इतना आसान नहीं है। तो हम साइंटिफिकली टेक्निकल भी यूज़ करते हैं, हर चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। हमने एक फॉर्मूले बनाए हैं, बहुत मेहनत करके एल्गोरिथम्स बनाए, उसके बेसिस पे बताते हैं। ठीक है,
तो वाइजली इन्वेस्ट करिए। आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं अपना वाइजली करिए, समझिए उतार चढ़ाव, जोर के ऊपर के मोमेंट, जोर के नीचे के मोमेंट्स चलते ही रहेंगे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक। और अगर हम हमारे ग्रुप में, तो हम तो हैं ही यूट्यूब पे, आपकी सेवा करने के लिए बैठे ही हैं। अगर कोई भी आप ग्रुप हमारा ज्वाइन करते हैं, संपर्क करने का नंबर 9820861044, तो आपको एडवांस में बताएंगे और अपना जो नॉलेज है आपसे शेयर करेंगे। आपको हम सेमिनार्स में भी इनवाइट करेंगे जो हमारे एजुकेशनल है, सभी के लिए वही संपर्क करें। और बाकी तो हम यूट्यूब में कोशिश जितनी हो सकेगी, ऊपर वाले की जितनी मर्जी होगी, हम तो ज़रूर यहाँ पे आके आपकी सेवा करेंगे। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। श्रावण का महीना, आप लोगों से आशीर्वाद मांगता हूँ। नमस्ते।